students and welcome back. Today we will discuss the part 3 of Unit 9, The Earth Our Habitat. As we already discussed the previous chapter in part 1 and part 2, and in this video we will discuss the remaining chapter of chapter 9. In first, we will discuss about GPS. That what is GPS? Global Positioning System. With the help of Global Positioning System, we come to know the latitudinal and the longitudinal location of any place through mobile phones and Google Earth. Means students, with the help of GPS, we can know द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. हमें किसी भी जगह की अगर लोकेशन पता करनी है तो हम जीपीएस के थ्रू पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फोन्स एंड गूगल अर्थ. The latitudinal and the longitudinal location of any place may be found with the help of mobiles which have internet access. Today, latitude and longitude can be easily be understood with this. Students, we can say that if we found any location of any place, then we can found it with the help of mobile, and it work in only one condition if our mobile have the internet connection. So in today's life, to know about latitudes and longitudes become very easy. So let's read the further major longitudes. The first one is Greenwich Mean Time, GMT line. The 0 degree longitude which passes through Greenwich city of England is called Greenwich line. Means student, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो पास होता है ग्रीनविच सिटी के थ्रू इंग्लैंड के ऊपर से, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन. Greenwich line divides Earth into two equal parts from east to west, and with the help of Greenwich line, it divides the Earth into two equal parts, east to west, which is known as Eastern Hemisphere and Western Hemisphere, जिसको हम Eastern Hemisphere और Western Hemisphere के नाम से जानते हैं. The longitudes up to 180 degree of Greenwich line are called Eastern longitudes. Means students, जो longitude 180 डिग्री होता है ग्रीनविच लाइन के, उसको हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं. एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. और जो लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट होता है ऑफ ग्रीनविच लाइन, उसे हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं. कम टू द सेकेंड वन, इंटरनेशनल डेट लाइन. 180 degree longitude is called international date line. Whatever the 180 degree longitude formed out, that will known as international date line. It is just one longitude, और ये ऐसा एक ही longitude होता है. The date and time changes when we cross this line. It passes through the Pacific Ocean. Okay, whenever we cross this line, the date and the time change. ओके हम कह सकते हैं कि जब भी हम इस लाइन को क्रॉस आउट करते हैं तो उस वक्त जो डेट और जो टाइम है वो चेंज हो जाते हैं पैसिफिक ओशियन के थ्रू. इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट 180 डिग्री एट सम प्लेसेस, बट हम कह सकते हैं कुछ जगह ऐसा नहीं होता है. इट इज़ इन जिगजैग फॉर्म. कुछ जगह पे ये जो लाइन है ये जिगजैग फॉर्म में होती है. मीन्स ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, जिगजैग फॉर्म में होती है. The reason behind it is that if it is drawn straight, it will cross some island or some countries, because of which two dates will mix up on the same island. ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये जो लाइन है वो स्ट्रेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो वहाँ पे जितने भी उस लाइन के जो एरिया है उसमें जितने भी आइसलैंड्स और जो कंट्रीज आएंगे उनमें जो डेट है और जो डेट हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे. तो इस कारण से ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होती, ये जिगजैग फॉर्म में आगे जाके हो जाती है. पूरी तरीके ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती. इन सम प्लेसेस वाइल गोइंग टू अदर साइड ऑफ एन आइसलैंड डेट में चेंज. बट हम कह सकते हैं अगर हम किसी और हिस्से में जाएंगे, किसी और आइसलैंड के हिस्से में जाएंगे
तो उस वक्त हम कह सकते हैं डेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, विच विल क्रिएट कन्फ्यूजन, और जिसके कारण से हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूजन द लाइन इज डेविएटेड रफली, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो लाइन है ये हमने रफली क्या की है, बनाई गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं zigzag फॉर्म में है। To avoid any confusion of date, this line is drawn through the sea and not the land, और इसी कारण से कि पर्सन्स को, जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको कन्फ्यूजन ना हो, इसके कारण से ये जो लाइन है ये सी में बनाई है, लैंड में नहीं बनी है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द जोन्स, or we can say tropics. From the given figure 9.10, as you can see the figure 9.10, yes. From the given figure 9.10, it becomes clear that Earth is divided in different parts on the basis of difference in temperature, light, heat and cold. So student, as you can see in this picture 9.10, we can say the Earth is divided. अर्थ डिवाइड है, कौन सी बेसिस पे डिवाइड किया जाता है अर्थ को? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड जोन, और इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं जोन. ठीक है. रीजन रिसीविंग मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलो. जो रीजन्स में बहुत कम लाइट होती है या फिर हीट कम आती है, तो उन रीजन्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया. लेट अस सी दैट. देखिए, टॉरिड जोन. टॉरिड जोन्स मीन एक्सेसिव हीट. टॉरिड जोन वो हिस्सा है अर्थ का जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट पड़ती है. कम टू द टेम्परेट जोन, मॉडरेट हीट एंड कोल्ड. वी कैन से दैट जो एरिया टेम्परेट जोन में आता है, उधर जो हीट और जो कोल्ड है वो मॉडरेट उसमें होती है. थर्ड में देखिए फ्रिज जोन, एक्सेसिव कोल्ड. जो एरिया, जो प्लेसेस फ्रिज जोन में आती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड पड़ती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ. लाइक अदर प्लैनेट देर आर टू टाइप ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ ऑल्सो. स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ. Like other planet, if we talk about the planets, then on the basis of that we can say that the earth also have two types of motions. Let us read about this. First one is rotation. At the top rotate on its axis. In the same way earth also rotate on its axis. As you can see, जैसे कि जो टॉप है जो रोटेट होती है एक्सिस पे, उसी तरीके से जो हमारा अर्थ है वो भी रोटेट होता है उसके एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट. दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन. और जो ये जो मोशन होता है अर्थ का, दिस इज नोन एज डेली मोशन, बिकॉज जो अर्थ है वो मूव करती है ऑन इट्स डेली बेसिस. Therefore, it is called daily motion. It is also called rotation. Yes, we also can say that it is known as rotation. The Earth completes a cycle of 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन इक्वेटर. हम कह सकते हैं जो अर्थ है वो अपनी एक साइकिल यानी कि एक चक्कर कब लगाता है? पूरे 1670 किलोमीटर पर आवर में. इट टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट दिस साइकिल. यानी कि उसको 24 घंटे लगते हैं पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने में. दिस स्पीड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप. और इसी के कारण हम कह सकते हैं जो अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल नहीं घूमता बल्कि ऑरेंज शेप में घूमता है. कम टू द सेकेंड, रिवॉल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट ऑन इट एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, तो इसी कारण से जो अर्थ है वो सन के भी चक्कर लगाता है. इट्स टेक अबाउट 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन. तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन को पूरा, मतलब सन का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 डेज लगाता है. वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर. और इसी पीरियड को हम ईयर के नाम से डिनोट करते हैं. एन इमेजिनरी वे टू अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस हैज़ बीन डिटरमाइंड विच इज़ नोन एज ऑर्बिट. तो हम कह सकते हैं कि हम एक ये काल्पनिक कह सकते हैं कि जो अर्थ है जो रोटेट करता है सन की चारों ओर, जो भी स्पेस होता है उसके बीच में, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. अलॉन्ग विद दिस
The Earth do not move in circular path, rather it move in an elliptical orbit. और इसी कारण से जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर. हम कह सकते हैं वट एवर द डिस्टेंस in sun and the earth is not same all the years. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. हम कह सकते हैं जो अर्थ जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे वो एंगल बनाता है 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे और 66.5 along its orbit और अपनी ऑर्बिट पे. ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन ऑकर्स एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंडेड एंड शॉर्टन. और यही कारण है कि जो हमारे डिफरेंट सीजन्स होते हैं लाइक समर विंटर मानसून्स वो आते हैं और जो डे और जो नाइट का जो दिन जो रात जो होती हैं वो इसी के कारण होती हैं. डे एंड नाइट ड्यू टू डेली मोशंस ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ओकर. जो हमारा डेली जो मोशन होता है अर्थ जो डेली घूमता है राइट वो डेली चक्कर लगाता है उसी के कारण से जो डे एंड नाइट्स हैं वो ओकर होती हैं. एंड द अर्थ इज टाइटल्ड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. द सन शाइन्स ओनली ऑन हाफ ऑफ इट एंड द अदर हाफ इज डार्क. हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता है जिसके कारण से जो सन है उसकी जो रोशनी है वो हमारे आधे अर्थ पे ही पड़ती है और जो आधा अर्थ होता है वो हमारा डार्क रहता है. तो हम कह सकते हैं इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेटेड देन ऑन वन साइड ओनली लाइट would have been there while on the other side it would be remain dark. और अगर जो अर्थ है वो अगर अपनी एक्सिस पे ना घूमे तो जो सन है उसकी जो लाइट है वो हमेशा एक ही भाग पे पड़ेगी और दूसरा भाग हमेशा अंधेरे से छाया रहेगा. बट ऐसा नहीं होता है. जो अर्थ है हमारा रोटेट होता है जिसके कारण से जो सन है उसकी आधी रोशनी जो है अर्थ पे गिरती है तब हम कह सकते हैं कि डे हुआ है और जब आधी रोशनी नहीं पड़ती है तो उस वक्त क्या हो जाती है रात यानी कि अंधेरा. बट इट इजंट सो. दस एवरी part of earth experiences light from darkness and darkness from light in every 24 hours. इसलिए हम कहते हैं कि हर 24 घंटे तो 24 घंटे होते हैं फिर दिन होती है रात होती है. बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग. और इसी कारण से जो हमारा जो अर्थ है वो सारे एक्सपीरियंसेस लेता है लाइक मॉर्निंग के आफ्टरनून के एंड इवनिंग. All the three conditions have been applied in our earth. As the earth is titled on its axis, we find difference in the length of day and night. और जो हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है इसी के कारण जो हमारा डे और जो रात है जो हमारे दिन और रात है उनमें जो डिफरेंस है लेंथ में वो दिखाई देते हैं. सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून. हम कह सकते हैं जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को एंड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे 22 दिसंबर में. Where the sun rays fall directly and in an adjacent areas, the days are longer and the nights are shorter. और इसी के कारण हम कह सकते हैं जो हमारे दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रात होती हैं वो छोटी होती हैं. वेयर द सन रेज फॉल डायगनली. और जब सन रेज हमारी डायगनली पड़ती है यानी कि तिरछी तरीके से पड़ती हैं उस समय में जो डेज हैं वो क्या होते हैं शॉर्ट होते हैं और नाइट्स क्या होते हैं लॉन्ग. तो ये हम कह सकते हैं इस वक्त जो है हमारा ठंडी का टाइम आ जाता है. वाइल डेज एंड नाइट्स आर ऑफ सेम लेंथ ऑन 22 मार्च एंड 23 सितंबर. और इसीलिए जो डेज एंड जो नाइट्स हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डेज और जो नाइट्स हैं वो सेम लेंथ की होती हैं. जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है. नाउ लेट्स मूव फर्दर सीजन्स. नाउ एज द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस one by one northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun. यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसी कारण से
एक ना एक दिन जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वो फ्रंट में एक दिन आ जाते हैं। द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, और जिसके कारण से जो सन की जो रेज हैं वो इक्वली फॉल होती हैं नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। दस देयर इज डिफरेंस इन डे एंड नाइट, और इसी कारण से हम कह सकते हैं जो नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में जो दिन और जो रात होते हैं उनमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है। इन द एरियाज वेयर सनशाइन इज फॉर लॉन्गर टाइम they experience summer, whereas the areas the sunshine is shorter time they experience is winter। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे जिन एरियाज में ज़्यादा सनशाइन गिरती है, सनलाइट की पड़ती है, वहाँ पे उन एरियाज में समर होते हैं, और जिन एरियाज में शॉर्टर टाइम के लिए जो है सनलाइट पड़ती है वहाँ पे जो है विंटर सीजन देखने को मिलता है। सीजन्स डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, और जो सीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन्स लाइफ को, क्योंकि ज़्यादा ठंडी रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं हमें ज़्यादा ठंड लगेगी, और गर्मी में हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इस वजह से जो सीजन्स हैं वो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब फाइंड आउट विच सीजन विल बी देयर इन फॉलोइंग कंट्रीज व्हेन इट इज समर इन इंडिया। आपको बच्चों विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, ठीक है, आपको मैप देखना है या फिर आपको अपने इंटरनेट के जरिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि जब इंडिया में गर्मी होती है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, भूटान और ब्राज़ील में कैसा मौसम रहता है, वहाँ पे समर रहता है, मानसून रहता है, कैसा रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Now come to the Uttarayan. The direct rays of the sun begins to fall towards north of equator. The northern solstice occurs on 22 December. Sun enters Makar Rashi on 14th January, so it is called Makar Sankranti. Uttarayan means my student. उत्तरायण इज ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति। उत्तरायण को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस दिन स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सन है उसकी डायरेक्ट रेस जो हैं वो गिरने लगती हैं नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में। दस जो नॉर्थन सॉलिस्टिक है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्ट होते 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 14 जनवरी को जो है फाइनली जो सन है वो मकर राशि में एंटर करता है, और इसी के कारण जो है हम लोग मकर संक्रांति बनाते हैं। नेक्स्ट इज दक्षिणियन। फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन shift from tropic of cancer towards south of equator, it is called दक्षिणियन। दक्षिणियन क्या होता है बच्चों, इस दिन क्या होता है जो सन की जो डायरेक्ट रेस हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरने के बजाय जो साउथ है इक्वेटर के साउथ में गिरना शुरू हो जाती हैं, उसी को हम दक्षिणियन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वन इज इक्विनॉक्स। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। मीन स्टूडेंट जो सन है और जो इक्वेटर है वो आपस में इंटरसेक्ट यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं साल में 2 बार। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इसी इंटरसेक्शन को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है बच्चों, व्हेन द सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर then we called as equinox. During equinox सन moves toward northern hemisphere. इक्विनॉक्स के दौरान जो सन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर की ओर आने लगता है। सो फ्रॉम 22 मार्च लेंथ ऑफ डेज इंक्रीजेज एंड नाइट्स बिकम शॉर्ट, और इसी के कारण 22 मार्च से क्या होता है जो डेज है वो लंबे, जो दिन है वो बड़े होते हैं और जो रात है वो छोटी होने लगती हैं। ऑन 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, और इसी के कारण जो 21 जून है उसको हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है और जो रात है वो सबसे छोटी होती है। As the sun moves towards southern hemisphere from 24th September, length of the days start increasing and night become shorter, और इसी के कारण हम देखते हैं 24 सितंबर से हम देखते हैं कि जो लेंथ है वो डेज की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगती हैं और जो नाइट्स हैं वो शॉर्टर होने लगती हैं। On 22 December, days are the longest and the nights are shortest in southern hemisphere. हम कह सकते हैं 22 दिसंबर से जो डेज है वो लॉन्गेस्ट यानी कि बड़े होते हैं और जो नाइट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, शॉर्टेस्ट हो जाती हैं
साउथर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच नाइट्स एंड डेज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। यानी कि स्टूडेंट्स 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे, जिसके कारण से जो नाइट्स हैं और जो डे है, दिन और रात क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। Now let's read about the leap year. Since 1 year of Earth is 365 days and 6 hours. यानी कि स्टूडेंट एक साल ऐसा होता है जहाँ पे कि जो पूरा जो हमारा साल है उसमें 365 डेज होते हैं और 6 आवर्स होते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम 1/4 ऑफ द डे को कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए शो वी काउंट ईयर एज हैविंग 365 डेज। इसलिए हम 365 डेज से ही उसको काउंट करते हैं। 6 आवर्स को काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट रिमेनिंग 6 आवर आर एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी एवरी 4 ईयर। और इसी कारण से जो 6 जो आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, वो हम किस में ज्वाइन कर देते हैं, फरवरी में, राइट। एवरी 4 ईयर, हर साल में जो फरवरी है उसमें हम 6 आवर ऐड कर देते हैं, जिसके कारण से जो फरवरी है वो 29 डेज की हो जाती है। हर साल में आपने देखा होगा, हर 4 साल में जो फरवरी है वो 29 डेज की आती है। एंड वी कॉल दैट दिस दैट ईयर इज लीप ईयर, और इसी कारण से उस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। नाउ एक्लिप्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन ग्रहण, जो ग्रहण लगते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून। एवरीबडी नोज दैट वट एवर द लाइट वी आर गेटिंग इट इज ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सन एंड मून। सन इज सेल्फ एल्यूमिनेटेड एंड शाइन्स ब्राइटली। जो सन है उसके पास अपनी खुद की रोशनी होती है और वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली यानी कि चमकता है। वाइल द मून इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन। बट जो मून है वो उसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो जो है चमकता है सन की रोशनी से। एल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज। और जो एल्यूमिनेटेड पार्ट्स है, जो चमकने, जो शाइन होता है, जो हिस्सा, वो हमें अलग अलग दिन के प्रकार से हमें दिखाई देता है। An occasion when moon or the sun seems to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth, in such situation it is eclipse। और स्टूडेंट इसी के कारण जब कभी कभार आपने देखा होगा कि जो सन है और जो मून है, जब वो अपना कभी कभार जो अपनी रोशनी है, वो उनकी जो रोशनी है वो डिसअपियर यानी कि गायब होने लगती है। उसका कारण क्या होता है, या तो उनके बीच में अर्थ आ जाता है या तो उनके बीच में मून आ जाता है। और इसी सिचुएशन को, जब कभी कभार अर्थ और मून बीच में आते हैं, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। ओके, नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। फर्स्ट वन इज सोलर एक्लिप्स एंड द सेकेंड वन इज लूनर एक्लिप्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सोलर एक्लिप्स। मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मीन स्टूडेंट, जो मून है वो हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और जो मून है वो हमारे अर्थ की क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। समटाइम्स वाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। और कभी कभी वो चक्कर लगाते लगाते वो क्या है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एट दिस टाइम एट द शेडो ऑफ मून कॉन्सेंट्रेट सन इज नॉट विजिबल। और इसी के कारण क्या होता है, जो उसकी जो परछाई है वो मून पे गिरती है और जो सन है वो हमें दिखाई नहीं देता है, राइट। जो मून है उसकी परछाई हमें किस पे दिखाई देती है, सन पे, राइट। सूरज पे उसकी परछाई दिखाई देती है, जिसके कारण से हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, और इसी इवेंट को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। एज द मून इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन, इट कैन नॉट कवर द होल सन। और जैसे कि हमें पता है, जो मून का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ सन। तो इसी कारण से जो मून है वो पूरी तरीके से सन को नहीं ढकता है। द सोलर एक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। और इसी कारण से जो सोलर एक्लिप्स है वो एक ही समय पे पूरे वर्ल्ड में दिखाई नहीं देता। सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन नो मून डे, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। ठीक है, जो सोलर एक्लिप्स है बच्चों,
वो मोस्टली नो मून डे पे ही ऑकर होता है, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन, बट ये जो इवेंट है सोलर एक्लिप्स जो है वो हर बार नहीं होता, ये कभी कभार ही होता है नो मून डे पे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द lunar eclipse. Moon gets light from the sun, as we all know that the moon gets light from the sun because moon do not have its own light. Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, तो इसी कारण से जो सन रेज हैं जो मून की ओर जा रही हैं और जाते जाते कभी कभार उसमें अर्थ बीच में आता है, देन दैट पार्ट ऑफ द मून रिमेन्स डार्क, और जिसके कारण से जो अर्थ है उसकी परछाई किस पे दिखाई देती है बच्चों, हमें मून पे दिखाई देती है। किसकी परछाई दिखाई देती है, किसकी शेडो, अर्थ की शेडो दिखाई देती है, और हमें लगता है कि जो मून है वो एक्चुअली क्या हो गया, ढक गया है। इन nutshell, that much part of earth shadow falls on a moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse, और इसी के कारण हम इसे lunar eclipse के नाम से जानते हैं। Such event occurs on full moon night, but such event do not take place on every full night. ये जो इवेंट है बच्चों ये फुल मून नाइट पे होता है, जब जो मून है वो पूरा दिखाई देता है उसी जो दौरान ये जो इवेंट है वो होता है, पर ये जो इवेंट है हर फुल मून नाइट पे नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आई होप यू गेट क्लियर अबाउट व्हाट इज सोलर एक्लिप्स एंड व्हाट इज लूनर एक्लिप्स, and I'll revise it one more time that in solar eclipse moon comes between sun and earth, and if we talk about lunar eclipse, in this case earth comes between sun and moon. Okay, so I hope you so student, I hope you understood the chapter number 9, the earth our habitat, and now student you have to do the worksheet of this chapter by seeing this video, and if you have any doubt then you have to see this video for 2 to 3 times so that your doubt gets clear. But then also if you have any doubt then you can ask me at any time. Okay, so students, I'll over my video here only, but you have to see this video for 2 to 3 times so that you can easily understood this chapter. Okay, so till then students, bye bye and take care.